सपने बहुत लोग देखते हैं, उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जिनके पूरे होते हैं, और उनमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये मौका मिलता है कि उनका सपना पूरा हुआ है और वो सारी दुनिया को ये बता सकते हैं कि we did something different, we went against the flow, and today we can tell you that it was all worth it. Meet Amarpreet Kaur, known to many as Oshin Oracle, one of India's most celebrated tarot readers and white magic healers. A Bharat Ratna Samman 2025 awardee and a TEDx speaker, Amarpreet brings 9 years of expertise in tarot, astrology, spell work and energy healing, helping people find clarity, protection and transformation. Today, let's ask her how we can balance and heal our energy. कि एक इंसान आपके पास जो आया है वो किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, लेट्स से करियर में स्ट्रगल कर रहा है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, बट द मैसेज दैट यू आर गेटिंग इज दैट ही और शी इज नॉट मेंट फॉर दैट. False hope can be extremely dangerous for people. It's very important that you say the truth, because if I have the intuition, that voice tells me that this is not the path for them, but something better is in the store, then I have to let them know, because sometimes those aspirations, those goals are not even ours. They are put upon us. जब आप वो करते हो जो आप करना चाहते हो और जो आपके लिए वो चीज़ बनी हुई है, you feel home. Home is not a place, it's not a person, it's a feeling. I feel home today. मुझे लगता है कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ, किस्मत के दरवाजे अपने आप मेरे लिए खुल रहे हैं. वो उसी पाथ पे होता है जो आपके लिए बना होता है. फिर आपको कोई रोक नहीं पाता. जब दिल से ये आवाज़ आ जाए कि घर आ गए हैं, तो समझ जाना कि वही आपका काम है जो आप करने के लिए बने हो इस दुनिया में. किस तरह से आप कह सकती हैं कि आप मैजिकल हैं? What are the different things that you do for people? मेरे पापा हमेशा मुझे एक चीज़ बोलते हैं. वो हमेशा कहते हैं कि संतान दे कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम. कि जो लोग होली होते हैं, जो उसके लोग हैं, द पीपल हु बिलोंग टू गॉड, उनके सारे काम करने भगवान खुद आते हैं. कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, पर वो किसी भी रूप में आपकी ज़िंदगी में आएंगे और सब कुछ ठीक करके चले जाएंगे. And that is the power of surrendering to that divine energy. What about people who are actually a bit narcissistic? उन्हें समझ ही नहीं आता है. उनको लगता है कि देखा, इसकी गलती थी, इसीलिए ये बार बार मुझे मना रहा है. Do you think there are people surrounded with those kind of energies also? ये वही लोग हैं जिनके खुद के को भी ट्रॉमा ही नहीं है. Nobody is born a narcissist. कोई इंसान है जिसको सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है. वो अपनी बुक सेल्फ साफ करते रहेंगे. They start arranging their racks. ये वो लोग हैं जिनके लाइफ में इतनी मेस है कि वो उसे नहीं ठीक कर सकते, तो फिजिकल वर्ल्ड में अपनी इसको रियलिटी बनाते हैं. ड्रीम्स की भी क्या कोई सिग्निफिकेंस होती है, या हर ड्रीम की नहीं होती है? कोई ड्रीम हमारा सबकॉन्शियस ही है, या कोई ड्रीम हमें कुछ फ्यूचर के बारे में बता रहा है, या पास्ट के बारे में? सो ड्रीम्स की अगर मैं बात करूँ, lot of people come from smaller cities to Mumbai to become actors, and they are very passionate about it, but they don't have the talent, maybe, or maybe they don't have the right opportunities, or maybe it's just not the right path for them. तो वो differentiation कैसे कोई इंसान खुद पता लगा सकता है? Hi, Chavi. Isn't this my lucky day? Thank you so much. I love it. So is it Oshin or Oshin? It's Oshin. Oshin. Yeah, with double E. Okay. And it means light. Wow. A bright light. And this name was primarily my first name, which my parents kept. And everyone knows me by this name. And this name holds a lot of meaning in my life with the things that I do. And I think I really love it as well. And all the time, like if you go to my house, you'll always find a manifestation that I've written. Like since I was a kid, I used to write, Oshin is magical. I never thought that it's going to become a reality one day. But subconsciously, I used to write that on everything. My water bottles, my school bags, on my wall, in my bedroom. So everywhere you find this written, Oshin is magical. And you are magical today for a lot of people. Yes, So thank Oshin, you. मुझे बताइए कि किस तरह से आप कह सकती हैं कि आप मैजिकल हैं? What are the different things that you do for people? First of all, I think I always believe in myself. Growing up, I had to face a lot of things in my life. And I always thought one thing whenever I was disturbed. Magic was something that always kept a hope alive in me. It was something that told me to look beyond the difficulties that I'm going through now. Because one day I always used to say, the world will know that I have magic and magic is real. Because I used to believe in Santa Claus, I still do. I used to believe in unicorns, and I still do. Because whatever I do today, I do it for that inner child that is still inside me. A little girl that gets excited over even little things. And that magic, it's something that has kept me alive. And today, it has helped people get their confidence back in their life. It has helped people to start believing in themselves again. Because today, where we live, the kind of
things that we are facing today and the kind of anxieties, the panic attacks, and the everyday life that we go through, it's very important that we have that short window, escape route, something that can just make us free from whatever we are facing today. And I think when you start believing in magic, magic starts finding you. There you'll see that there are synchronities happening. There are things happening so magically in your life. If you go to airport, then suddenly you are upgraded to business class. When you go somewhere in a restaurant, you're treated like a VIP. And the best thing that I see in my life is that whenever I go to visit a religious place, I'm a very big Krishna devotee. So whenever I go to visit a religious place, like I went to Vrindavan, and before going, I wrote in my diary that I'll write to Krishna, that Krishna, I'm coming. I was going for the first time, and I want all the traffic to be gone. I want you to just make me believe that you love me more than I love you. And he did that. Like बांके बिहारी जी, आपको पता होगा वहाँ इतना रश होता है, पर जब मैं गई ऐसा लगा जैसे कोई रास्ता सारा साफ कर रहा है सिर्फ मेरे लिए. And I got to even touch the chaukhut of Banke Bihari ji. I got the prasadi khazana of that, and I got so many blessings there. And when I went there, होता है ना जब हम किसी बहुत बड़े मंदिर में जाते हैं कि हम ये चीज़ मांगेंगे. But when I went there, I was just crying. I was just looking at him, and I was crying the tears of gratefulness. Because today, whatever I am, whoever I am, I used to think that yes, maybe things will turn around like this. Maybe I'll be in a podcast. Maybe people will come to me for help and they'll feel that home, that feeling of home in a person, and that person will be me. And today, when all of this is a reality, I feel this is what magic has done in my life. And this magic I want to show to the entire world that your life can also heal, it can also improve. You just have to start loving yourself. How wonderful. आप जो भी बोल रही हैं, I can actually feel it and it gives me goosebumps when you say that, because I'm also a firm believer in manifestation and magic. और मैं अक्सर ऐसा बोलती हूँ that I'm God's most favorite child and nothing Yes, wrong that's can happen to beautiful. me, and it actually happens. और ये जो Yes. छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में होती हैं कि ट्रैफिक जैसे कि क्लियर हो जाना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को मैं I just tell myself कि ये होगा, ये हो रहा है, definitely. मेरे साथ ये हो रहा है और ये मेरे साथ होगा. And it always happens. I've never felt कि ये कोई रुकावट मेरी लाइफ में आएगी जिसकी वजह से क्या पता ये ना हो. मैं हमेशा ये सोचती हूँ क्या पता ये हो जाए. आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट That's so ब्यूटिफुल beautiful, मोमेंट. yes. सो मुझे बताइए कि जब आप दूसरों को हील करती हैं किसी भी कंडीशन से, हेल्थ कंडीशन या ट्रॉमा से, तो आप ये अपना मैजिक किस तरह से यूज़ करती हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स दैट यू यूज़? First of all, Shavi, we have to understand that everything in the world is made up of energy. Okay, we are surrounded by energies. Okay, sometimes they are positive, sometimes they are negative as well. But energy is the language of universe, the invisible language of universe. It flows through us. It's the purest and highest form of life force. So whatever that is around us, living things, non-living things, everything around us is made up of energies. And once these energies start freely flowing in our life, all the issues that you're facing, be it your relationship issues, your career issues, your health issues, they start to align. So my job as a healer, as a light worker, is that I should tell people that this power resides inside you. I just have to channel it. I'm just a medium. Just like my page name is Oshin Oracle. So what is an oracle? Oracle is a medial man. It's like a middle person who connects you with a god. It helps you to tell the messages of the god to the entire people. So this is what the oracle means, that the power I have, I feel so blessed that I'm able to deliver the messages of the divine, and I can help people to channelize their energies in such a way that they understand that whatever power was there, it was inside me. Like I love that line from that song Arziyan, and I remember that when I was going through a very difficult time in my life, I used to listen to that song, and one line really hit me. मुझ में ही वो खुशबू थी जिससे तूने मिलवाया. That presence, that fragrance, that power, it resides inside you. But sometimes we lose it because the energy gets disrupted, and we just forget who we actually are and what we are here to do. So it's very important that we have a purpose in our life. सो ये जो आप मैसेजेस की बात कर रही हैं कि यू आर जस्ट द पर्सन हु इज़ कन्वेइंग दीज मैसेजेस, गॉड्स मैसेजेस टू एवरीबडी, कभी ऐसा होता है कि एक इंसान आपके पास जो आया है वो किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है कि मुझे ये चीज़, लेट्स से करियर में स्ट्रगल कर रहा है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, बट द मैसेज दैट यू आर गेटिंग इज दैट ही और शी इज़ नॉट मेंट फॉर दैट. कभी Yeah. ऐसा होता है? Yes, तो आप a कैसे lot of उससे डील times. करती हैं? First of all, we have to believe in one thing, that as you just said,
दैट मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। जब आप ये बोलना शुरू कर देते हो अपने आप से कि आप अपनी लाइफ में सबसे अच्छा डिज़र्व करते हो और आप उसे पाओगे, तो आपकी ये जो लाइफ की जो स्ट्रगल है कि मुझे ये बनना है, शायद मैं, बिकॉज आपका एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे एक डॉक्टर बनना है तो उसके पीछे मेरा क्या मोटिव है। क्या इट इज़ ओनली बिकॉज आई वॉन्ट फेम और मनी, और इज़ इट एक्चुअली बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल? ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ पर्टिकुलर मिशन, वट एवर इट इज़, लाइक इट इज़ सब्जेक्टिव टू पीपल and I'm no one to judge them, but it's very important that you have a purpose behind it. For example, if I wanted to be a lecturer and I was working as a lecturer, as I told you, so there I used to feel that I'm able to influence so many minds. What if I do it on a larger scale? Because there were young girls, I was teaching in a girls college, and the way they used to so freely talk about their issues with me, be it their relationship issues or whatever they were facing in life. There are so many issues in the female life, so they were so able to talk to me about all those things. And I used to feel that what if I do it on a larger scale? What if my voice reaches a million people? बिकॉज छवि सपने बहुत लोग देखते हैं, उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जिनके पूरे होते हैं जी। और उनमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये मौका मिलता है कि उनका सपना पूरा हुआ है और वो सारी दुनिया को ये बता सकते हैं कि वी डिड समथिंग डिफरेंट, वी वेंट अगेंस्ट द फ्लो, एंड टुडे वी कैन टेल यू दैट इट वाज ऑल वर्थ इट. So this is what that you have to know, that what is your purpose, and it could be fulfilled in some other way as well. So the first thing is that whenever you're trying to, you have to speak the truth, because false hope can be extremely dangerous for people. It's very important that you say the truth, because if I have the intuition, that voice tells me that this is not the path for them, but something better is in the store, then I have to let them know. Because sometimes those aspirations, those goals are not even ours. They're put upon us. Even like you must have seen this thing, that इतनी young age में आजकल parents को पहले ही पता होता है उनका बच्चा क्या बनेगा. They tell this thing exactly. कि नहीं तो बड़ा होके cricketer बनेगा या ये कुछ ऐसा करेगा. तो कई बार हमारे सपने हमारे होते भी नहीं हैं और हमें पता भी नहीं होता, बिकॉज वी आर सो कंडीशनड इन दैट वे कि शायद यही हमारा सपना है, अब हमें यही पूरा करना है, अदरवाइज आई एम गोना लेट अ लॉट ऑफ पीपल डाउन. वरना मुझे खुद बताइए कि किसका सपना होता है कि वो एक हीलर बने. It's like obviously you can be into that phase where you want to be so many different things. लोग कहते हैं क्या, लोग हंसेंगे, ये क्या मतलब हुआ, how can you do that full time, how can you be a tarot reader and you can say that you can run your home, you can have a good family? Because people have so many constructs about, especially women in spirituality, they feel that नहीं जो पंडित जी बोल रहे हैं वो करेंगे, तो एक कंस्ट्रक्ट चल रहा है, उस कंस्ट्रक्ट को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है कि spirituality has to be simple. इट शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड. एंड आज की यूथ को जितनी स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की नहीं है. बिकॉज स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में करती है, जो एक होप लेके आती है, वो और कोई चीज़ नहीं ला सकती. तो ये स्पिरिचुअलिटी जिसकी आप बात कर रही हैं, इसको कैसे अवेकन करना होता है? पहली बात तो एवरी पर्सन दैट यू मीट टुडे, दे हैव देयर सर्टन पावर इन देम. Okay, everyone has the power of manifestation, everyone has that light, but it's just that every day we live in a dual reality. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम ये डिसीजन ले लेंगे तो शायद हमारी लाइफ में कोई शॉर्टकट हमें मिल जाएगा. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद ये वाला पाथ हमारे लिए बेस्ट पाथ रहेगा. तो हमारे जो भी डिसीजन है, एवरी डिसीजन दैट यू मेक इन योर लाइफ, इट इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी लास्टिंग इम्पैक्ट. Be it your relationship decision, your marriage decision, your career decision. But that doesn't mean that you can't change it after some time. Okay. Because there are a lot of people who get stuck in a career, they want to get out of it, but they don't have that courage. Because मुझे आज याद है कि मेरे पास एक सर आए थे, he was around in his 50s and he was in a corporate job. और मुझे कह रहे थे कि I saw his cards and the first thing I told him was, you're not happy with your life. You wanted to change it, like from 10 years you want to change it, but you don't have that courage and nobody has even said you do it. And he said that, yes ma'am, you're right, like this is continuously going on in my brain कि मैं क्या करूँ, अब मैं above 50 हो गया हूँ तो मैं career कैसे switch कर लूँ. Then I gave him that confidence. I told him that नहीं, आप कर सकते हो, आपको करना होगा. एंड टुडे ही इज सच अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. उनका इतना अच्छा रियल एस्टेट का काम चल रहा है. एंड द मोस्ट थिंग आई सी इज दैट व्हेनेवर आई सी हिज वीडियोस, ही इज हैप्पी, ही इज स्माइलिंग वाइड, एंड दैट हैप्पीनेस हैड गॉन फ्रॉम हिज लाइफ. तो किसी को कभी भी ये कहना कि अभी देर नहीं हुई है, you still deserve a second chance, and that second chance is there available when you are ready. तो अपने आप को रेडी रखना बहुत ज़रूरी है. सो ये दिस इज़ अ लिटिल
कंफ्यूजिंग फॉर मी कि कभी कभी क्या होता है हम रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि ये हमारी इंट्यूशन है कि ये कुछ ऐसा है जो हम चाहते हैं. लाइक आई एम सेइंग कि what you want to do in life might not be the right path for you. So how do you know the difference कि ये मेरा सिर्फ पैशन है लेकिन मैं इसमें बहुत बड़ा लॉस करने वाला हूँ, कर सकता हूँ, although something inside you is telling me नहीं नहीं मुझे तो ये करना है. Like for example, lot of people come from smaller cities to Mumbai to become actors and they are very passionate about it, but they don't have the talent maybe, or maybe they don't have the right opportunities, or maybe it's just not the right path for them. तो वो differentiation कैसे कोई इंसान खुद पता लगा सकता है? जब आप वो करते हो जो आप करना चाहते हो और जो आपके लिए वो चीज़ बनी हुई है, यू फील होम. होम इज़ नॉट अ प्लेस, इट्स नॉट अ पर्सन, इट्स अ फीलिंग. आई फील होम टुडे. मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद मुझे किसी चीज़ को चेज़ करना है अब. और बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास आते हैं वो सेम ये चीज़ बोलते हैं. एक शांति आती है दिमाग में, एक पीस आता है. मुझे लगता है कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ किस्मत के दरवाजे अपने आप मेरे लिए खुल रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? वो उसी पाथ पे होता है जो आपके लिए बना होता है. फिर आपको कोई रोक नहीं पाता. जब दिल से ये आवाज़ आ जाए कि घर आ गए हैं तो समझ जाना कि वही आपका काम है जो आप करने के लिए बने हो इस दुनिया में. सो आई थिंक दैट्स द शॉर्टेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन यू दैट फीलिंग. दैट इज़ सो ब्यूटिफुल. बहुत सिंपली आपने एक्सप्लेन कर दिया. और ऐसा होता है, ऐसा मैंने भी एक्सपीरियंस किया है. कुछ चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं बिकॉज यू नो समबडी इज़ पेइंग यू टू डू इट, और यू हैव टू रन योर किचन, और ये करना पड़ रहा है, लेकिन खुशी नहीं मिलती वहाँ पे. वो बस आप कर रहे हो बिकॉज करना पड़ रहा है. बट देयर आर सम थिंग्स you just do it and one thing leads to the other, and next thing you know everything is just falling right into place. Like I think for me starting this podcast was one of those things. मैं चाह रही थी मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है. कैसे करना है नहीं पता था, but I just literally just dived into it and one thing led to the other, और सब चीज़ें अपने आप जैसे होता है ना वो रेड कार्पेट रोल होता चला गया, खुलता चला गया, खुलता चला गया. And now I'm sure you're feeling home with this. Absolutely, I feel so comfortable. I look forward to talking with guests like you, thinking कि आज मैं क्या नया सीख कर जाऊँगी. That's so beautiful, Shavi. So ये बताइए कि ये जो एनर्जीज होती हैं, आप बोल रहे हैं कि हर किसी में अपनी अपनी एक पावर होती है, तो ये एनर्जी क्या मेरी एनर्जी किसी और को इम्पैक्ट कर सकती है और किसी और की एनर्जी मुझे इम्पैक्ट कर सकती है? बहुत ज़्यादा हद तक. ओके. एक टर्म होती है एनर्जी वैम्पायर. हमारी लाइफ में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, हमें डीमोटिवेट करना चाहते हैं, हमें ऐसा फील कराते हैं कि शायद हम ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं लाइफ में. ऐसे लोगों के जब आप पास जाएंगे, यू डोंट फील दैट वाइब, यू डोंट इवन फील लाइक टॉकिंग टू देम, बट समटाइम्स इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर यू टू हैव दैट कन्वर्सेशन विद देम. एंड ऐसे जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं दे डिस्टर्ब योर एनर्जीज. और ऐसे एनर्जी हीलर्स होते हैं जिनसे सिर्फ बात करके चीज़ें अच्छी हो जाती हैं. ऐसा लगता है कि एक बार ये हाथ पकड़ लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. मैंने ये बहुत बार किया है. जैसे जब कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता है, आई जस्ट होल्ड देयर हैंड और मैं अपने हायर सेल्फ को कहती हूँ दैट आई वॉन्ट यू टू गो अहेड विद मी एंड यू क्लियर द पाथ ऑफ दिस पर्सन. बिकॉज sometimes you don't even touch the person because there are so many energies that are flowing. Like for example, there is Reiki, there is Mana, there is Prana that is used in the Hindu mythology. So what these energies are doing is they try to create that sync, that flow, that right flow, that divine flow in your body, that you start feeling more peaceful. जब भी आप किसी ऐसे इंसान की प्रेजेंस में हैं जो अच्छा इंसान है, जिसकी एनर्जी वाइब्रेंट है, पॉजिटिव है, जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, आपका नर्वस सिस्टम उसके आसपास बहुत काम रहेगा. और ये मैं बहुत सारे अपने बच्चों को भी बोलती हूँ जो क्लाइंट्स आते हैं कि बेटा अगर कभी जानना हो ना कि इज़ दिस पार्टनर द वन फॉर यू, तो उसके सामने ना आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा. आपको कभी कभी हल्की हल्की नींद भी आने लग जाएगी बिकॉज यू फील सो रिलैक्सड, यू फील सो काम. आपको कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और ऐसे लोग आपकी लाइफ में जब आते हैं दे ऑलवेज ऐड वैल्यू टू इट. एंड आई ऑलवेज से दैट अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में बहुत एनर्जी वैम्पायर्स हो गए हैं, इट्स ओके टू से नो टू देम, इट्स ओके टू कट योर टाइज ऑफ विद देम. बिकॉज हमें नहीं ज़रूरत है किसी की नेगेटिव एनर्जी लेने की. अब जैसे मैं एक एनर्जी हीलर हूँ, ठीक है, मेरे पास पॉजिटिव लोग भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे. सो आई एज माई जॉब, एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डू दैट. आई डू take their negative energies on me, and sometimes, Chavi, they can be so heavy because I'm also a human being, right? So when you take those energies inside you, you feel like crying. Your entire balance, it just, for a few minutes only, but yes, it gets disrupted because you see everything that they've been through.
And yes, sometimes you feel that heavy energy inside you as well. Because, and then I just try to be calm. I try to do some cleansing rituals myself, because there are so many ways in which you can clean the energy also, channelize it also, and also again you can revamp yourself, you can revitalize yourself. So there are ways, but yes, of course, there are different type of सो people and अगर ये energies. एक एनर्जी हीलर कम्स फेस टू फेस विद एन एनर्जी वैम्पायर, ये एनर्जी सक कर रहा है और ये एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड कर रही है, सो हाउ डज दैट बैलेंस वर्क आउट? I'll tell you one thing, Chavi. One positive thought, one positive word, one positive prayer, it's more powerful than 1,000 negative things in your life. Suppose आप एक negative troll में चले गए हो, जिसमें सिर्फ आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सिर्फ नेगेटिव बातें सोच रहे हो, और वहाँ पे आप एक थॉट लेके आओ, क्या पता सब ठीक ही हो जाए यार. So if you are doing that one thought, you'll see your entire body's response changes. एकदम से जो वो एक ट्रैफिक चल रहा है ना दिमाग में, वो शांत हो जाता है. और यही होता है, अगर आप 1000 एनर्जी वैम्पायर्स भी ले आओ, लेकिन एक एनर्जी हीलर है, तो पॉजिटिव एनर्जी विल ऑलवेज बी डोमिनेंट ओवर द नेगेटिव एनर्जी. बिकॉज हम कभी अपना विश्वास अपने ऊपर से नहीं उठा सकते हैं. जो लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं, शायद उनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही, बिकॉज हर एक इंसान शुरू से बुरा नहीं होता. छवि, आप ये देखेंगे, मैंने एक बहुत पैटर्न देखा एक इंसान में, कि जिसको बहुत गुस्सा आता है, वो इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान होता है. आप कभी इस चीज़ को नोटिस करना, क्योंकि अगर आपको गुस्सा आ रहा है छोटी छोटी बात पे, दैट मीन्स आप वो सेचुरेशन लेवल रीच कर चुके थे, जहाँ पे आपको इतना बुरा लगा कि आपके पास 2 चॉइस थी. या तो आप सबसे कट ऑफ हो जाओ, स्टबर्न हो जाओ, रूड हो जाओ, या रोते रहो. अगर आपने रोने वाला ऑप्शन चुना, क्योंकि कई लोग चुनते हैं, तो आपको लोगों ने बोला कितना कमज़ोर है यार तू, इतनी सी बात उससे हैंडल नहीं हो रही, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू डूइंग दिस, बी स्ट्रॉन्ग, मूव ऑन कर जाओ, हो जाता है कभी कभी. तो यू फील दैट यार माई फीलिंग्स आर नॉट गेटिंग वैलिडेटेड हेयर. ओके, मैं कितनी बार दुनिया को दिखाऊं कि मैं इतना कमज़ोर हूँ या कमज़ोर हूँ. तो आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? फिर आप एंगर को अपना रेस्क्यू बनाते हो. आप किसी को वो वॉल बना देते हो कि कोई आपके इतना पास ही ना आए कि वो आपकी रियल सेल्फ आपको पता लग सके. और व्हेन यू कॉल ऑन दैट, कि हम जानते हैं आप सिर्फ दुखी थे और दुनिया ने आपके साथ ठीक नहीं किया, time was not kind to you, and that has led to you to become this who you have become, that person just breaks. Because ये कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस में वॉइस थी, जो उनको रोज़ कहती थी कि यार हमें भी प्यार चाहिए. क्योंकि चलिए, लेट मी टेल यू वन थिंग, द मोस्ट पावरफुल इमोशन, लाइक फ्रॉम द डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई हैव, द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इज़ लव. उससे ऊपर कुछ भी नहीं है. When you start knowing that, acknowledging that, कि every human being at the end of the day, they need love. उनको एक ऐसा इंसान चाहिए, उनको अंदर से सेल्फ लव चाहिए. एंड जैसे ही हमारे पास प्यार होता है, हमारे अराउंड होता है, हम अपने आप कंफर्टेबल फील करते हैं. जब मुझसे कोई बात करना शुरू करता है, दे स्टार्ट कॉलिंग मी ओशीन मैम, एंड कॉल एंड करने पे दे कॉल मी ओशीन माँ. जब ये स्टार्टिंग में हुआ तो मुझे समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है. आई वॉज कन्फ्यूज्ड. फिर बाद में एक पैटर्न पता लगा, मुझे बच्चों ने खुद बताया, कि जब हम आपसे बात करते हैं, हमसे इतने प्यार से कोई बात ही नहीं करता. एंड इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी कि तो बहुत नॉर्मल तरीके, दिस इज हु आई एम, लाइक आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ना उनको घर में वो प्यार मिला, ना वो कभी बाहर मिला, कि उनको लगा कि शायद अनकंडीशनल लव जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है. इवन इफ समवन इज डूइंग द लीस्ट बेयर मिनिमम फॉर यू, आपको लगता है आपको सब कुछ मिल गया, और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. Because the highest form of love that Sufis talk about, that saints talk about, that is the love that gives you so much power कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी बन सकते हो. So that is the energy that we all want to harness in our life. और जैसे वो हम समझ जाएंगे, जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे, हमारी लाइफ उतनी आसान हो जाएगी. Now I want to ask you कि you're talking about these energy vampires. तो हमें कई सारे लोग अपनी लाइफ में ऐसे मिलते हैं जो हमें पसंद नहीं करते हैं. Like मेरे साथ ऐसा मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि sometimes you just get that energy from somebody that somehow this person doesn't like you. तो as a person who is generally very positive, हम कोशिश करते हैं कि नहीं, हम क्यों वैसे हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी फैलाएंगे, वी विल बी नाइस टू देम, बट द अदर पर्सन टेक्स एडवांटेज ऑफ दैट, राइट. तो आप कोशिश कर रहे हैं कि आप प्यार से बात करें, आप पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करें, लेकिन सामने से जो है वो आपको बैक स्टैप करके चले जाते हैं. तो इस तरह का जब एनर्जी बैलेंस होता है, आपको कोई इस तरह का इंसान मिलता है, तो आपको क्या करना चाहिए? छवि, आई वांट टू टेल यू वन थिंग,
कि हमारी लाइफ में 2 तरह के लोग आएंगे, एक हमारा लेसन बनेंगे, एक हमारा लव बनेंगे. जो लेसन्स होते हैं, वी कांट स्किप ऑल द लेसन्स. Okay. वी हैव टू लर्न दिस कि ऐसा मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में कि अगर मेरे पास वो लेसन्स नहीं है तो मे बी आई एम नॉट हु आई एम टुडे. वो लेसन्स ने मुझे बनाया. मैं क्यों इतनी काइंड हूँ, मुझे क्यों अच्छा लगता है लोगों से प्यार से बात करना, क्योंकि शायद जब मुझे ज़रूरत थी तो मुझसे किसी ने नहीं की. तो ये चीज़ अगर मैं समझ पा रही हूँ तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि पहली चीज़ तो आपने जैसे बोला कि यू टॉक टू देम वेरी पॉजिटिवली एंड हैप्पीली, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो सेड यू दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नो. If someone is draining your energy, just simply say no. I'm not there for you to make me uncomfortable. I cannot let you take advantage of me, because there's a very thin line, extremely thin line between getting taken advantage of and being a nice person. Okay. You can be a nice person and still be saying no to a person who is trying to ruin you or trying to backstab you, because backstabbing, hate, these are very big, powerful words. And we have to be very cautious, because backstabbing means that person has completely crossed all the boundaries. They have disregarded all the love and care that they have given you. And now it's my time to preserve my energy, to preserve the love I have for myself. Suppose someone has done this to a loved one, तो क्या आप उनसे बात करते? आप उन्हें प्रोटेक्ट करते ना. आप उन्हें मना कर देते कि आपने मेरी सिस्टर के साथ ऐसा किया या मेरी मदर के साथ ऐसा किया, तो आई नॉट टॉक. देन हाउ यू कैन टॉलरेट दैट थिंग हैपनिंग टू योर सेल्फ? आपको अपने साथ वो रिलेशन ऐसा रखना पड़ेगा कि अगर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो आई हैव ऑल द राइट्स टू से नो एंड कट ऑल द टाइज ऑफ विद दिस पर्सन. लेकिन ऐसा भी आप क्या ट्राई कर सकते हैं कि I want to heal this person also. Of course, of course. Then how do you do that while preserving your own energy? पहली बात तो we have to understand that why that person is acting that way. बिकॉज देखो, एक चांस देने की बात होती है ना. यू कैन गिव 100 चांसेस. अगर कोई इंसान इनकॉरेजिबल हो गया है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट इफ़ यू फील दैट देयर इज़ अ होप, इफ दैट पर्सन इज़ योर लव्ड वन फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपका कोई लव्ड वन है एंड यू सी दैट दिस पर्सन वॉज नॉट लाइक दिस बिफोर बट नाउ दिस पर्सन इज चेंजिंग, तो वहाँ पे हीलिंग एनर्जीज यूज़ में आती हैं. ठीक है. The first option is that you can go to a healer and take help, and the second option is that if you want to do it yourself, पहले reason, root cause पता करो. Why this is happening? Is it because of jealousy, or there are some things that I might have done but I didn't notice them? Because it happens. कई बार हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं क्योंकि हमारा बातों का, छवि आप एक बात देखेंगे कि हमारी बातों का जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो हमारा ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है. लाइक आप मान नहीं सकते हो कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इनर चाइल्ड हीलिंग कभी हुई नहीं, ट्रॉमास कभी हील हुए ही नहीं. कोई छोटी सी बात भी करेगा ना जो मेरे लिए बड़ी नॉर्मल चीज़ है, पर मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है उस चीज़ से. Okay. That's why suddenly you sometimes get a reaction which you were not expecting, or you also Yes, feel of course. triggered. जैसे किसी ने नॉर्मली, आप जैसे कहीं बाहर गए हो है ना, किसी की फैमिली में डोमेस्टिक अब्यूज़ बहुत होता है, कोई वायलेंस उसने देखा, अपने पेरेंट्स को हमेशा लड़ते झगड़ते देखा, तो अगर आप अपने पार्टनर से या किसी से थोड़ी सी भी ऊंची आवाज़ में बात करोगे, हल्का सा कि इधर आ जाओ, क्या कर रहे हो, उसका ट्रॉमा ट्रिगर हो जाएगा. दैट पर्सन विल लूज इट. वो इतनी सी बात उसके लिए बहुत बड़ी बात बन जाएगी, बिकॉज वो ट्रॉमास, छोटी छोटी बातें, किसी को एक पर्टिकुलर नाम से बुलाना, किसी की छोटी सी बात है उसके बालों का मजाक उड़ाना, किसी भी चीज़ पे उसको टॉन्ट करना, आपको नहीं पता उसका क्या ट्रॉमा है. आप नहीं उसको ट्रिगर कर सकते हो. बिकॉज जो भी आजकल हो रहा है, मतलब डार्क जोक्स बोलते हैं लोग, इतनी सारी बातें बोलते हैं, एक ये ट्रॉमा शील्ड की तरह वर्क करता है. लोग अपने ट्रॉमास पे हंस रहे हैं छवि. दैट्स द मोस्ट पेनफुल स्टेज अ पर्सन कैन रीच. कि आप सोच सको कि शायद कभी ठीक ही नहीं होगा. लेट्स टेक इट एज इट इज़, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. क्यों हम ऐसी बातों को बार बार ट्रिगर करें जो हमें कंफर्टेबल ही नहीं फील कराती? क्यों ना इसे ठीक किया जाए. और ठीक करने का सबसे पहला तरीका, आपका उसका रूट कॉज पता करो. ठीक है. फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बताई. जब आपको पता लग गया, फिर उसे कम्युनिकेट करो. आप जब कम्युनिकेट करते हैं किसी से कोई भी चीज़, ठीक है, वट एवर यू आर टॉकिंग, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कैन डू वंडर्स. आप किसी के सामने बैठ के उसका हाथ पकड़ के अपने मन की बात कह के तो देखो, क्योंकि आजकल हम वही नहीं कह पा रहे हैं. वी आर नॉट एबल टू डू दैट. हम रुक जाते हैं. हमें डर लगता है कि व्हाट इफ दैट पर्सन डजंट रिएक्ट इन दैट वे दैट आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू रिएक्ट. लेट्स लीव ऑल दैट टू गॉड एंड टॉक, and you'll see that people do change. I'll tell you one incident regarding the same.
I was in college and there used to be a very strict professor of ours एंड उनसे सब बच्चे डरते थे, कोई उनके पास नहीं जाता था, सब उनको अलग अलग नेम कॉलिंग करते थे कि इनसे तो कोई बात ही नहीं कर सकता, शी सो रूड, शी सो हैरोगेंट, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को. And I happened to went in the staff room and I had some work with her, and of course I was scared too because सब डरते थे उनसे. But I saw her coughing. Okay, पता नहीं मेरे बैग के अंदर एक फिक्स थी, सो आई हैड दैट कॉफ लॉन्जेस. सो व्हाट आई डिड इज़, मैं बहुत प्यार से उनके पास गई, मैंने उनको वो दी टॉफ़ी, एंड मैंने उनको बोला कि मैम आपको खांसी हो रही है, आप प्लीज़ ये ले लो, एंड आई होप यू टेक सम रेस्ट बिकॉज यू डोंट लुक वेल. Shavi, she started crying. That lady who had never talked to anyone with love, she just holded my hand and she started crying. And she said that I'm not well from past 5 days and not even a single person told me to take rest. You see how easy it was. It was that anger, as I told you, that anger is that last stage of depression and stress and sadness. So when you just can't get out of it, you try to make it a way of your life. And this is the way that we can actually change a lot of people. और हमें ये ओपन माइंड रखना पड़ेगा, और ये आसान नहीं होता. छवि, लेट मी टेल यू, लोगों से नाराज़ होना बहुत आसान है, पर उन्हें बार बार मनाने की कोशिश करना बहुत मुश्किल है. बिकॉज लोग आपके ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे कि आप में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, आप बार बार कैसे जा रहे हो. बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप ऐसे इंसान हो जिनको इन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता, तो जब आप किसी की लाइफ ऐसे चेंज कर दोगे, उसका माइंड इतना रिलैक्स हो जाएगा कि यार कोई है जो मेरी भी केयर करता है. बिकॉज वी जस्ट नीड दैट वर्ड. यही है पावर वर्ड्स की छवि. किसी का दिन बना देना या किसी का दिन बिगाड़ देना, किसी की ज़िंदगी बना देना अपने कुछ वर्ड्स से. हमने कितनी बार देखा होगा, कुछ वर्ड्स ही हमारे लाइफ में कितनी सारे चेंजेस ले आते हैं. एक बार सही इंसान को सही शब्द कहने से उसकी पूरी ज़िंदगी पलट सकती है. वाई डोंट वी डू दैट, वाई डोंट वी यूज़ दैट पावर जो हम सबके पास है. वाई डोंट वी ऑलवेज हैव टू कम्पीट विद ईच अदर. लेट्स ट्राई एवरीवन टू हील, बिकॉज कहीं ना कहीं हर किसी का कोई ना कोई ट्रॉमा आज भी उसके अंदर है, एंड वो बहुत सारे रूट कॉजेज़, वो स्टेम्स हमें वो देखने पड़ेंगे. वहाँ पे एक पिन लगाना पड़ेगा कि अब ये चीज़ हमने दोबारा इस बारे में बात नहीं करनी. एंड यू सी अपने आप के रिलेशंस अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे. एक बार सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम गलत होते हैं पर हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो सही हैं, पर ये डिफरेंस देखना कि क्या हमारा रिस्पॉन्स ट्रॉमा के थ्रू आ रहा है या हमारा रिस्पॉन्स एक्चुअल जेन्युइन रीज़न की तरफ आ रहा है, बहुत ज़रूरी है, और हमें पता लग जाता है. वी गॉट टू नो दिस. So this is very interesting that you said कि बार बार आकर आप किसी को मनाते रहेंगे तो उन्हें लगेगा क्या है इसमें, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. व्हाट अबाउट पीपल हु आर एक्चुअली अ बिट नार्सिसिस्टिक? उन्हें समझ ही नहीं आता है, उनको लगता है कि देखा इसकी गलती थी इसीलिए ये बार बार मुझे मना रहा है, मेरी तो गलती ही नहीं थी. डू यू थिंक देयर आर पीपल विद सराउंडेड विद दोज काइंड ऑफ एनर्जीज ऑल्सो? एज आई टोल्ड यू, एक मैं बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल देखती हूँ. द थिंग्स दैट आई एम लाइक अबाउट टू से, दे डोंट हैव अ साइंटिफिक एविडेंस, दिस आर ऑब्जर्वेशंस दैट आई हैव मेड. ओके, जैसे अगर सपोज करो कोई इंसान है जिसको सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, छोटी सी चीज़, जैसे बुक्स ऊपर नीचे पड़ी हैं तो उसको अरेंज कर देगा, ठीक है. जैसे थोड़ा सा भी कहीं पे भी गंदगी है, दे वांट टू क्लीन इट इमीडिएटली. वो अपनी बुक सेल्फ साफ करते रहेंगे, दे स्टार्ट अरेंजिंग देयर रैक्स. ये वो लोग हैं जिनके लाइफ में इतने मेस है कि वो उसे नहीं ठीक कर सकते, तो वो फिज़िकल वर्ल्ड में अपनी इसको रियलिटी बनाते हैं. उनको ऐसा लगता है डी क्लस्टर करने से कहीं ना कहीं उनके माइंड को एक वो पीस मिल रही है कि वो चीज़ हील हो जाएगी. जो भी जैसे हमने नार्सिसिज्म बोला, ये वही लोग हैं जिनके खुद के को भी ट्रॉमा हील नहीं हुए. नोबडी इज़ बोर्न अ नार्सिसिस्ट. ओके, दैट पर्सन हैज़ सीन सर्टन थिंग्स, that person has faced certain things, and that they reaches that level of attitude, that arrogance, जिसको yes down लेके आया जा सकता है. ओके, मैं बता रही हूँ ना, हर किसी का एक वो स्विच है जो उसे एकदम पिघला देता है, उसे नरम कर देता है. बस वो स्विच ढूंढना की जरूरत है, ये वो कहाँ है. तो आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, हर तरह की चीज़ें आप देखते हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं. डू यू थिंक दिस सोशल मीडिया कंजम्पशन ऑल्सो हैम्पर्स और अफेक्ट्स आवर पर्सनल एनर्जी? a lot. तो वो कैसे होता है और कैसे हम अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं? पहली चीज़, आप जो भी चीज़ अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसमें एनर्जी है. आप सुबह उठते ही क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं. आपने एक चीज़ नोटिस की होगी छवि, कि हमारे इंडियन कल्चर में हम कभी भी किसी से हाथ नहीं मिलाते थे. हम नमस्ते करते हैं क्योंकि हमें हर किसी की एनर्जी नहीं चाहिए. ओके, हम ये एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस टाइम से, एंशिएंट टाइम से.
कि हमारे नमस्ते किया जाता है अननोन लोगों से. वी डोंट शेक हैंड्स Yeah. बिकॉज व्हेन यू डू दैट शेकिंग ऑफ हैंड्स यू डू ट्रांसफर द एनर्जी. समटाइम्स इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव, समटाइम्स नेगेटिव. तो आप अपनी एनर्जी उन्हें दे देते हैं, उनकी खुद ले लेते हैं. ठीक Okay. है. तो इसलिए हम नमस्ते करते थे, दैट वी बाउ टू द डिवाइन. ओके. अब यहाँ पे जैसे आपने अपने सोशल मीडिया की बात करी, आपका फ़ोन सोर्स है कि आप कैसे सोच रहे हो. एक ब्रेन रॉट होना स्टार्ट हो जाता है, एक एंडलेस स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाती है. आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लग जाता है कि आप वो नहीं हो जो आपको सोशल मीडिया बना रहा है. अगर इसे हम सही वे में यूज़ करें तो इट कुड बी द मोस्ट मैजिकल एंड मोस्ट अमेजिंग थिंग. आप सुबह उठते कोई ऐसी वीडियो देख लो जिसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस की बात की गई है, दैट कैन मेक योर डे. Okay. बट सुबह सुबह अगर आप कोई ऐसी चीज़ देख लो जो आपकी नेगेटिव थॉट्स को बार बार मैनिपुलेट कर रही है, उसको और बढ़ा रही है, तो इट विल, सो यू हैव टू बी वेरी सब्जेक्टिव. हम जैसे सुंदर बन के जाते हैं कहीं पार्टी में, तो वी मेक श्योर ना कि हम बहुत सुंदर कोई ड्रेस पहने. ऐसे थोड़ी जो भी सामने आएगी उठा के पहन लेंगे. वी आर सिलेक्टिव अबाउट दैट. वी चूज, वी टेक टाइम दैट व्हाट टाइप ऑफ मीडिया डू आई वांट टू कंज्यूम. So you don't have to be reckless about it. You have to use your mind. You have to be mindful. Mindful होना आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देता है. Okay. माइंडफुलनेस का मतलब है कि मैं आज में जीती हूँ. जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, एक पैटर्न है जो वुमेन में बहुत देखने को मिला है. एक लेडी सब्जी काट रही होगी, दिमाग में उसके चल रहा होगा डिनर में क्या खाना है, Correct. चल रहा होगा उससे फ़ोन पे क्या बात करनी है, एंड टीवी भी देख रही होगी. मतलब 4 जगह आपका दिमाग जा रहा है, बट आप माइंडफुल नहीं हो. दैट इज कटिंग ऑफ द वेजिटेबल्स विच कैन बी क्वाइट थेरेपेटिक एज वेल. व्हाई डोंट फोकस ऑन दैट. एक जापानीज सेइंग होती है, वाइल ड्रिंकिंग द टी ड्रिंक टी. कि जब आप जहाँ हो, जो भी आप कर रहे हो, बी प्रेजेंट, बी माइंडफुल फॉर दैट. तो जब भी आप सोशल मीडिया कोई भी कंटेंट यूज़ करते हो, बी माइंडफुल. बिकॉज इतना हमें अब समझना पड़ेगा, क्योंकि जो मिलेनियल्स की लाइफ थी, ठीक है, और आज जो जेनजी की लाइफ है, उसमें सबसे बड़ी डिस्पैरिटी ये है कि हम लोग अपने मीडिया पे इतने ज़्यादा कंज्यूम्ड है कि हमें बात करने का ही मौका नहीं मिलता. वी आर लुकिंग फॉर पीपल टू टॉक. ना हम कभी बाहर जाके सोशलाइज होते हैं, ना हम बाहर, अब बच्चे जाके कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, कोई उनके फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे हैं. तो ये चीज़ आगे जाके भी कैरी फॉरवर्ड होती है. आप मेट्रो में देखोगे सब ने हेडफोन्स लगाए हुए हैं. किसी को ट्रेन के व्यूज़ ही नहीं देखने, किसी को देखना ही नहीं हम कहाँ पे आए हैं. लाइक आप कहीं बाहर घूमने गए हो, आप पहाड़ों में घूमने गए हो, अब नेचर में जब भी रिट्रीट करने जाते हो, लाइक दैट इज़ योर एनर्जी रीबूस्ट. ठीक है, बिकॉज जो नेचर की एनर्जी है वो आपको ग्राउंडिंग करती है. ठीक है, वो आपको दोबारा से आपकी सारे एनर्जीज को फोकस डाउन कर देगी, आपके रूट चक्र को बैलेंस करेगी, आपके सारे चक्रस को अलाइन करेगी. पर वहाँ जाके भी अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे हो, अगर आप डेट पे हो और आप दोनों ही अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप माइंडफुल नहीं हो. जो आज है, जो ये मोमेंट है, उसमें जीना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ये हमें बताता है कि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ. I've actually seen couples जो आमने सामने बैठ के एक दूसरे को रील्स फॉरवर्ड कर रहे होते हैं. Yes, that happens. You're not there. Just be with them. क्या पता किसी से एक बार बात करके आप उसकी ज़िंदगी बदल दो. कई बार एक बात करने की ज़रूरत होती है ना. So tell me कि जब आप हीलिंग करती हैं, ऐसे मतलब okay, it's one thing to say that I can preserve my own energy, but maybe I'm not capable of doing that. तो जब आप किसी को हील करती हैं, तो क्या ये प्रोसेस रिमोटली भी हो सकता है? Yes, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट रेकी एनर्जी, तो एक रेकी मास्टर से आप अटून होते हैं पहले. You can't do it on your own, although the energy is still present in you. अच्छा. If I want, I can show you a very quick example of that. So आपको क्या करना है, अपने जैसे ये दोनों आपके hands हैं, यहाँ पे सारे आपके 7 चक्रास हैं. Okay. ठीक है, you just have to rub your hands, gently rub your hands. ठीक है, you take a deep breath. And now इतने डिफरेंस पे अपने हाथ रखो. अपने हाथों को धीरे धीरे घुमाना शुरू करो. You'll see a little vibration coming in. हल्की सी से मैग्नेट में वाइब्रेशन होती है, थोड़ा टाइम लगेगा. यू सी दैट वाइब्रेशन कमिंग इन. इसको थोड़ा दूर करने की कोशिश करो. हल्की सी हीट निकलनी स्टार्ट होगी, फिर पास करो, दूर करो. दिस इज़ रेकी. ओके. आपको पता भी नहीं चला और आपने इस एनर्जी को हार्नेस करना शुरू कर दिया. ओह वाओ. यू सी दैट मैग्नेटिक काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग. यस. सो दिस इज़ रेकी. जब मैं इसको और एक्सपैंड करूँगी तो एक्सपैंड होती जाएगी.
and then I can use it on my body where some pain is there. I can use it on my heart chakra if I'm not feeling well. वाओ, So this happens. ओके। तो ये आप रिमोटली अगर किसी को, अगर मैं Yes, आपको, आप वहाँ बैठी हैं हाँ, मोहाली में और मैं आपको बोलूँ कि प्लीज़ मुझे सेंड मी सम So हीलिंग you have to send me a picture, you have to send me a location कि आप मुंबई से हैं, कहाँ से हैं, and then I visualize you. I visualize you and I redirect that energy towards you. Because it is channeling of that energy. वो दुनिया में कहीं पे भी हो सकती है. बिकॉज कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम हमें हीलिंग करानी है बट हम यहाँ पे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हैं या लंदन है, तो मैंने एक ही बात बोलती हूँ कि जब तक आप इस प्लानट अर्थ पे हो तो इट इज़ गोइंग टू बी वर्किंग ऑन यू. ओके, क्योंकि एनर्जी यूनिवर्सल है, हर चीज़ में है. इट इज़ जस्ट लाइक एक हीलर होके आप टेलीपैथिकली उसे चैनल करते हो. जैसे एक एस्ट्रल रेल्म्स होती हैं, ओके, तो उसमें क्या होता है कि यू ट्रैवल थ्रू दोज, जो हम साइकिक हीलर्स होते हैं. तो कई बार हम ऐसी रेल्स में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वी मीट सोल्स, वी मीट दोज डिवाइन बींग्स. अभी कल रात को मेरे साथ एक बहुत वियर्ड इंसिडेंट हुआ आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. बिकॉज एस्ट्रल जो ट्रैवल होता है इट इज़ समथिंग विच इज़ ऑफकोर्स वेरी एम्पावरिंग, बट इट कुड बी डेंजरस ऑल्सो ओके, बिकॉज यू मीट सोल्स ओवर देयर. सो जिस होटल में मैं स्टे कर रही थी मुझे नींद नहीं आ रही थी. देन आई सॉ द पोजिशन ऑफ द बेड एंड इट वॉज इन द साउथ डायरेक्शन, द हेड वॉज इन द साउथ. सो मुझे साउथ में से करके नहीं सोना था. सो आई वेंट ऑन द काउच एंड तब भी नींद नहीं आई, एक डिस्टर्बेंस थी एनर्जी में कहीं. देन आई डोंट नो कैसे मैं सो गई एंड उसके अंदर आई सॉ अ बॉय अराउंड लाइक 7-8 years का बच्चा. I was walking with him in the corridor in the same clothes I was wearing at that time. So I knew that my soul has traveled. Okay. So मैं उसके साथ चल रही हूँ और वो मुझे बोल रहा है कि मैं अपने मम्मी पापा से मिलने आता हूँ पर वो मुझे अब दिखते ही नहीं है यहाँ पे. ओह, And I was very shocked at that time because I knew that इस बच्चे को freedom नहीं मिली है, still stuck there. तो उसने मुझे बोला मैं वैसे सबसे बात नहीं करता हूँ पर मेरे को आप अच्छे लगे इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ. तो मैंने उसको बहुत प्यार से बोला, मैं कहा बेटा यू हैव टू गो टू लाइट, फॉलो द लाइट. एंड ही सेड नो कि व्हाट इफ़ मेरे मम्मी पापा आ जाए. तो मैंने उसको समझाया, मैं कहा यू विल फाइंड देम इन द लाइट ओनली. आप जाओ बेटा, आप प्लीज़ जाओ. और मुझे उस टाइम छवि जब वो लाइट में जा रहा था बच्चा, मुझे ऐसा लगा जैसे आई डोंट नो लाइक दिस वॉज द पर्पज ऑफ मी कमिंग हियर. शायद उसको वो मुक्ति देनी थी. एंड जब मैं उठी एकदम से, मेरी आँख खुली, तो मैंने उसी टाइम सर्च किया नेट पे कि क्या सच में ऐसा हुआ था. एंड इट हैपेंड इन 2011 दैट सच में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में एक बच्चा गुम हो गया था वहाँ पे एंड बाद में उसकी डेड बॉडी मिली थी. एंड ही वाज ट्रैप्ड देयर फ्रॉम सो मेनी इयर्स. ये एस्ट्रल रेम्स होती हैं. इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं करनी चाहिए, इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. अगर आप किसी चीज़ को मानते हो आप मानिए, आप नहीं मानते हो मत मानिए, बट किसी चीज़ के ऊपर इतना विश्वास रखना, उनको वहाँ तक छोड़ के आना, ये सबसे ब्यूटीफुल जर्नी होती है. एंड आई एम टेलिंग यू छवि, जब मैं हीलर नहीं थी, इस एस्ट्रल जर्नी से ही मेरी जर्नी की शुरुआत हुई. अच्छा. I was very close to my grandfather, my Nana ji, and he was a very handsome Sardar person. And वो रोज़ गुरुद्वारा जाते थे, every day. And I remember हम अपनी समर वेकेशंस में अपने पेरेंट्स के पास आए हुए थे. एंड सडनली उनको कुछ इशू हुआ तो उनको हॉस्पिटल रश करना पड़ा. एंड ही वॉज टोटली फाइन, मतलब वो बिल्कुल ठीक थे. पर मुझे एक प्रेमनिशन सा आता था कि जैसे ही इज़ डाइंग, लाइक ही इज़ ऑन हिज डेथ बेड. और पता नहीं घर पे टेंट लग रहे हैं, जैसे डेड बॉडी को जब लेके आते हैं तो वो सोबर से टेंट्स लगे हुए हैं, सब रो रहे हैं, सब बैठे हैं. और 1 महीना पहले आने शुरू हो गए. And it used to disturb me so much. I used to wake up every day crying and I used to tell my sister कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों दिख रहा है ऐसा मुझे. Because he's fine, like he's going on his daily walks, he's going to Gurdwara every day. So when we were leaving, he hugged me very tightly. Like वो इतने ज़ोर से होते ना, वो सिर पे हाथ रखते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, कभी इतनी ज़ोर से वाला हग किया. And at that moment I knew that maybe this is the last hug. Oh God, okay. You get that feeling that this is the last time. And I started crying. And I asked me that maybe he also knew. I somehow, because he also started crying, I just felt. और कई बार ऐसा लगता है कि फिर हम रुके क्यों नहीं. जब आपने मुझसे याद है क्वेश्चन पूछा था कि इंट्यूशन, और हमें लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, वो तब होता है जब हम शायद उस टाइम अपने पावर को समझते ही नहीं है. और आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था. तब मैं एक बच्ची थी तो मुझे लगा शायद ऐसे ही लग रहा है. पर जब हम नेक्स्ट डे वहाँ गए एंड यू नो आई वॉज स्लीपिंग, आई सॉ हिम इन माई ड्रीम. He came, he was very beautifully dressed,
And he told me that, Oshin, can you take me to Golden Temple, Amritsar, Harmandir Sahib that we call, and it's a very prominent religious place, as you might have known, for the Sikh people. So I told him that, yeah, sure, we can go. He was walking with me, and then the Gurdwara came, and we were walking down the stairs. So he had some problem in the knees, and I was helping him to go down, and I was holding his hand. Then he stopped for a while, and he looked at me, and he said that, Oshin, you have to help a lot of people. You don't know it yet, but there are going to be families who are going to be happy because of you. There are going to be people who are going to be finding hope in you. And this is what you're meant to do. I didn't understand at that time. I was just very confused. What is this happening? Then that last year came. He gave me his blessing. And he said that you will always be my favorite. And then he said that, and now I'm going. So I said, no, I'll just drop you inside also. And he said, no, not now. And you have a very long life ahead of you. You have to do a lot of things for people. Always be like this. And then he went into a light. And then I was woken up by the scream of my mother that he's no more. Oh. And he chose me as his last conversation. And that something in that dream, it just changed me. It told me that, okay, there is something bigger, a bigger calling. So ये जो हमारी I'm talking a little bit about past life also now because we are talking about souls कि ये जो हमारी energies आज इस life में हमें मिली हुई हैं जिनके साथ हम we are born, क्या वो हमारी past life पे भी depend करती हैं कि हम ज़्यादा हमारे life में dominant energies नेगेटिव होंगी या पॉजिटिव होंगी? सभी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हमारी ज़िंदगी में दुनिया में हमेशा रहेंगे जो कि बहुत वास्ट रहेंगे, जिसकी नॉलेज हर एक धर्म में डिफरेंट रहेगी, हर एक कर्म में डिफरेंट रहेगी. धर्म कहता है कि पुनर्जन्म होता है, कर्म कहता है कि जो है आज है. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि जब आप छोटे बच्चे थे कैसे घर में आप रहे. क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको आज जो आप हो वो बना दिया? क्यों आपके दोस्त नहीं बन पा रहे हैं? क्या आप लोगों पे भरोसा करने से डरते हो? क्या आपको डर लगता है कोई आपका दिल तोड़ देगा, इससे पहले आप ही उनसे दूर हो जाते हो? क्योंकि इससे बहुत डिपेंड करता है कि आपका बचपन कैसा रहा है. ओके. बिकॉज पास्ट लाइफ और ये सब चीज़ें आज बहुत लोग मानते हैं. साइंस भी चीज़ों को प्रूव करती है कि लोगों को याद आ जाता है कि वो क्या थे पिछले जन्म में. ये सब चीज़ें होती हैं. बट आपकी जो आज की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास हर वक्त एक मौका है अपनी ज़िंदगी कभी भी बदलने का. सो यू थिंक कि हमारा सारा जो पास्ट लाइफ बैगेज है वो हम उसी लाइफ में ख़त्म करके अगली लाइफ में जाते हैं? देयर आर सर्टन थिंग्स दैट वी डू कैरी फॉरवर्ड. ओके. मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के अच्छे कर्म आपके साथ आगे जाएंगे हमेशा. आप जो हो, आपकी जो बेसिक नेचर है कहीं ना कहीं पहले से आई हुई है. कुछ है आपके अंदर ऐसा जो आपको यूनिक बनाता है और वो आपके सोल के साथ रहेगा, क्योंकि सोल को कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई मेंड नहीं कर सकता. क्योंकि जैसे मैंने आपको एनर्जी की बात बताई, हमने रेकी की बात की, हमने ची की बात की, वो अलग अलग जैसे प्राणा की बात की. अब एक ऐसी एनर्जी है जिसको ना हम समन करते हैं ना मैनिपुलेट करते हैं, और वो है डिवाइन एनर्जी. एक परमात्मा है, ठीक है, जो एक वो एनर्जी है डिवाइन एनर्जी, वो हमें जीना सिखाती है. वो हमें ये बताती है कि ये वो एनर्जी है जहाँ मुझे सरेंडर करना है. मेरे दोनों हाथ खड़े, आई एम सरेंडरिंग, डू व्हाट्स बेस्ट फॉर मी. एंड दैट इज़ द एनर्जी. व्हेन यू डू दैट, एक सरेंडर की पावर करना, मतलब यू डोंट इवन नो छवि कि हमारी लाइफ कितनी बदल सकती है जब हम एक बार सरेंडर कर दें. लड़ते हैं हम, आखिरी दम तक लड़ते हैं. गलत कर रहा है तो यही इंसान मेरी लाइफ में चाहिए, यही होना चाहिए था मेरे साथ, क्यों नहीं है? और जब वो आपकी लाइफ में आएगा फिर आपको याद होगा, मतलब होता है कई बार आपकी गलत विशेष भी कई बार भगवान ज़रूर पूरी करता है, आपको दिखाने के लिए कि देख, मांग रही थी ना, अब देख कैसा लग रहा है. देन यू रियलाइज कि यार आई वॉज गोइंग अगेंस्ट द फ्लो. जब आप सरेंडर करोगे तो आपकी चीज़ देखोगे कि वो डिवाइन एनर्जी जब फ्लो करती है तो कैसे कैसे चमत्कार हो जाते हैं. आपको समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हो गया. मेरे पापा हमेशा मुझे एक चीज़ बोलते हैं जो मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ. वो हमेशा कहते हैं कि संतान दे कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम. कि जो लोग होली होते हैं, जो उसके लोग हैं, द पीपल हु बिलोंग टू गॉड, उनके सारे काम करने भगवान खुद आते हैं. कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, पर वो किसी भी रूप में आपकी ज़िंदगी में आएंगे और सब कुछ ठीक करके चले जाएंगे. And that is the power of surrendering to that divine energy. I want to also like
थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जब आप ड्रीम की आपने बात हाँ की, जी। ओके, तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि ड्रीम्स की भी क्या कोई सिग्निफिकेंस होती है, या हर ड्रीम की नहीं होती है? कोई ड्रीम हमारा सबकॉन्शियस ही है, या कोई ड्रीम हमें कुछ फ्यूचर के बारे में बता रहा है, या पास्ट के बारे में? सो ड्रीम्स की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देखने पड़ेंगे। अगर हम फ्राइडन थ्योरीज की बात करें तो वो कह के गए हैं कि ड्रीम्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ईदर दे शो यू योर बिगेस्ट फियर्स ओके और योर बिगेस्ट डिज़ायर्स। ओके व्हेन यू समन इट लाइक दैट, तो आप सच में कैटेगराइज करने लग जाओगे कि हाँ यार, जब वो सपना आया था शायद वो डर वाला था, ये डिज़ायर वाला था। ये कुछ ऐसे सपने होते हैं जिसमें आपको लगता है दैट यू आर प्रेजेंट देयर। हाँ हाँ, कुछ सपने सुबह उठते हैं तो बहुत रियल फील होते हैं। बहुत रियल फील होते हैं। और वो जो सपने होते हैं वो कई बार हमें कोई मैसेज दे रहे होते हैं। जो हम साइकिक वर्कर्स होते हैं, इट इज़ रियली, आई वोंट से मैंडेटरी, बट इट इज़ रियली क्रूशियल कि हम एक ड्रीम जर्नल लें। ओके एक ड्रीम जर्नल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सपने में कई बार ऐसी बातें, कुछ ऐसे रूम्स हैं जहाँ आप हो नहीं पर आप पहुँच चुके हो। मैं यहाँ हूँ नहीं, बट मैं अपने सपने में यहाँ आई हुई हूँ। आई हैव सीन दिस प्लेस। जब मैं यहाँ एंटर हुई मुझे लगा I have seen that, and that kind of deja vu, that premonition that you get in dreams, that has to be very clear. So you write it down. जब आप ड्रीम जर्निंग करना स्टार्ट करोगे तो अपने आप आपको लाइफ दिखाना लग जाएगी कौन से सपने एक्चुअल में मीनिंगफुल थे, जिसमें कोई मैसेज था या नहीं था, बिकॉज इट कम्स विद प्रैक्टिस। यू हैव टू हार्नेस दैट पावर टू हैव दैट डिफरेंशिएशन। एंड ऐसा भी, मतलब जो ड्रीम्स आपको रेकरिंग ड्रीम्स होते हैं, जो बार बार आपको एक चीज़ दिख रही है ड्रीम्स में, उसका भी कुछ सिग्निफिकेंस होता है? जैसे अगर सपोज आपको बार बार एक ही चीज़ दिख रही है, जैसे मैंने बताया, जैसे मेरे नाना जी की डेथ मुझे 1 महीने तक डेली ड्रीम में दिखी, तो ऑफ कोर्स इट हैड अ सिग्निफिकेंस। द यूनिवर्स वाज गाइडिंग मी थ्रू समथिंग, बिकॉज आपकी ड्रीम्स क्या है छवि, आपकी सबकॉन्शियस मेमोरीज हैं स्टोर्ड, और सबकॉन्शियस इज डीपर देन द ओशन। इतना सबकॉन्शियस में आपके क्या क्या है, आप क्या बोल सकते हो, क्या लैंग्वेजेस बोल सकते हो, ये आज भी बहुत बड़ा, एक बहुत वास्ट डिबेटेबल टॉपिक है। क्योंकि सबकॉन्शियस में इतनी एनर्जीज हैं, इतनी हार्नेसिंग पावर है कि वो आपकी लाइफ को किसी भी तरह से कहीं भी चेंज कर सकता है। आप जो आज हो, जो आप सोच रहे हो, जो आप कल सोचोगे, जो आप बनोगे, ये आपके सबकॉन्शियस पे डिपेंड करता है। तो आपका सबकॉन्शियस बार बार आपको वार्निंग देता है। जो इंट्यूशन का सोर्स है वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में भी है। वो आपको बार बार बताएगा यू हैव टू स्टॉप दिस एंड यू कैन डू दैट। तो इग्नोरेंस इज अ ब्लिस वाली चीज़ को अब छोड़ना पड़ेगा हमें। वी हैव टू स्टार्ट being face to face with everything we are happening. And would you say that sometimes the interpretation of dreams might be different for different people? Yes. Right? तो अगर मैं अपने ड्रीम को कैसे इंटरप्रेट कर रही हूँ, उस पर डिपेंड करता है कि मेरे ड्रीम की क्या सिग्निफिकेंस है कि नहीं। आपको पता होगा। ओके छवि, आई थिंक आप ना एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समझने की। यू हैव सो मच पावर इन यू। इस चीज़ को समझो कि मुझ में वो शक्ति है, क्योंकि हमें ना यार बचपन से ये चीज़ बहुत सिखाई जाती है। लाइक वी आर बॉर्न इन सच फैमिलीज कि हमें इतना प्यार मिला है, कई बार हम ना डिसीजन मेकिंग पावर भी दूसरों पे छोड़ने स्टार्ट कर देते हैं। करेक्ट। हमें लगता है कि नहीं यार, मम्मी पापा ने डिसीजन लिया, ठीक होगा, आगे जाके फिर हम स्पाउस पे डिपेंड हो जाते हैं। पर कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग पावर लेते ही नहीं अपने हाथ में। वो डिसीजन मेकिंग पावर लेनी पड़ेगी अपने हाथ में। ओके मुझे जैसे सपोज एडवाइस ऑब्वियसली सबसे लो, वो आपको जैसे अच्छा लग रहा है, बट एक ये चीज़ सोचना कि मेरी पावर को अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो इज़ इट राइट और रॉन्ग, वो डिफ्रेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है। तो इससे इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल एक बड़ा रिकरिक ड्रीम मैं अपने क्लाइंट का आपको साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसको एक सपना आता था, शी इज़ अ डॉग लवर, शी हैड अ लॉट ऑफ पेट्स, एंड उसका सबसे फेवरेट, सबसे क्लोज डॉग था, उसको सपने में डेली वो काटता था। ओके एंड शी यूज़ टू क्राई, शी यूज़ टू ब्लीड। उसको बहुत देर से सपना आ रहा है, एंड व्हेन शी टॉक टू मी, I told her that someone very close to you is about to cheat on you. Because dog is a symbol of loyalty. Okay. And within 3 days she found out that उसका जो boyfriend था, he was sleeping with someone else. And he was involved in another relation, and वो उससे शादी भी करने वाला था जो other woman थी। तो ये उसको पहले पता लग गया, क्योंकि जो ये डॉग है वो लॉयल्टी का सिंबल है। वो आपको बार बार काट रहा है, आपको हार्म कर रहा है। वो ये इंटरप्रिटेशन आ रही है कि ये चीज़ अब खराब होने वाली है, इसे समझो। इट्स अ वेकअप कॉल। I also want to share one dream which I used to see as a child. Yeah, sure. Many times I've seen that dream. Okay. जिसमें मैं साइकिल चला रही हूँ, और वहाँ मैं गुड़गांव में रहती थी। तो गुड़गांव में हाईवे के ऊपर ना अंडरग्राउंड वो वाटर टनल्स हैं, जिसके ऊपर छोटा सा एक ब्रिज हर जगह बना होता है। तो मैं साइकिल पे जा रही हूँ, एंड दिस मैन फॉलोइंग मी एंड आई एम रनिंग अवे फ्रॉम हिम। तो मैं भाग रही हूँ, साइकिल तेज चला रही हूँ, और मैं ब्रिज के ऊपर चढ़ती हूँ, एंड देन आई जस्ट स्टार्ट फ्लाइंग. I don't get off the bridge. I just start flying in the air and I'm free. Okay.
And I saw this dream many times. I want to break your dream in 3 parts. Okay. सबसे पहले हम साइकिलिंग का ड्रीम करेंगे, विच आई एम श्योर यू यूज टू एंजॉय एज अ किड. आपको अच्छा लगता था. सो दैट्स अ पार्ट ऑफ यू. व्हेन यू आर योर ट्रू सेल्फ, मतलब उस टाइम आपका दिमाग माइंडफुल था. तब आप कुछ और नहीं सोच रहे होते थे. जब आप साइकिलिंग करते थे तब आप सिर्फ साइकिलिंग करते थे. यूज टू हैव फन. दैट्स द फर्स्ट एलिमेंट. इफ आई एम करेक्ट यू कैन टेल मी दिस, राइट? दूसरी चीज़ वो ब्रिज वाली जो पार्ट है, ठीक है, वो आपका सराउंडिंग है बार बार, है ना. एक वो ब्रिज है, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं लाइफ में. दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंसेस फैमिली में चल रहे थे. Okay. वो ये बताता है कि अप एंड डाउन है, बार बार आ रही हैं चीज़ें, ठीक है. एंड देन मैन फॉलोइंग इज़ योर सबकॉन्शियस फियर. मुझे कुछ हो ना जाए. आपको बचपन से डर लगता था, छवि, जो मुझे अभी आपसे एनर्जी फील हो रही है, कि आपको कहीं कोई बहुत डेडली डिसीज़ ना हो जाए. Okay. यू यूज टू फील कि मेरे को कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो ठीक ना हो सके. अपने आप को लेके बहुत डर लगना. एक डेथ का वो होना कि यार कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं अपनी ज़िंदगी में जी नहीं पाऊंगी. और ये बहुत बचपन से, छोटी उम्र से होना स्टार्ट हो गया. और जब वो ड्रीम में वो इंसान जो था, दैट वाज दैट फियर, Okay. जो आपका पीछा कर रहा था. एंड जब आपने उसको उड़ा, दैट मीन्स उसको आपको एक सिंबल मिला कि वो फियर आएगा आपकी लाइफ में. आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, बट आप उसे फ्री हो जाओगे. जो फ्लाइंग है, दैट इज सिंबल ऑफ फ्रीडम. Okay. बर्ड्स आर एसोसिएटेड विद फ्रीडम. मतलब आप निकल जाओगे इस टाइम से बाहर. यूल फ्लाई हाई. ही विल नॉट बी एबल टू कैच यू. यू विल फ्लाई सो हाई, इट्स नेवर गोना हैपन अगेन टू यू. दैट वाज योर ड्रीम. Okay. Okay, this was a beautiful conversation and there's so much more that I can talk to you about, but एक मैं आपसे लास्ट जाने से पहले कहूँगी कि कुछ आप लेट्स से कि जो व्यूअर ये वीडियो देख रहा है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मे बी कोई डिजीज़ है, हेल्थ इशू है, या रिलेशनशिप इशू है, या करियर इशू है, कुछ इशू चल रहा है और एनर्जीज वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं. सो कैन यू से कि अभी इसी वक्त वो क्या करें कि दे स्टार्ट channelizing or harnessing their own energy in the next 10 minutes? I'll tell you one thing. 2 ऐसी पावरफुल एफर्मेशंस हैं जिससे आई स्वेयर बाय देम. ओके. जो पहली एफर्मेशन है वो ये है दैट यू क्लोज योर आइज. प्लीज डू दैट. लेट्स डू इट टुगेदर. यू टेक अ डीप ब्रेथ एंड यू फील द वेट ऑफ योर बॉडी. Whatever thoughts that might be coming in your mind, let them come and let them go. And you start repeating after me. I call my power back. I call my power back. I call my power back to me. I call my power back to me. From all the sources. From all the sources. From all the people. From all the people. Places. Places. Portals. Portals. Where I might have left it. Where I might have left it. Consciously or unconsciously. Consciously or unconsciously. I call my power back to its source. I call my power back to its source. Anyone who is trying to harm me. Anyone who's trying to harm me. You do not have my consent. You do not have my consent. I am powerful. I am powerful. I raise my vibration. I raise my vibration. I am safe. I am safe. I am protected. I am protected. I am love. I am loved. And you imagine a golden light flowing from the top of your head to your entire body. And you imagine that yes, right now in this moment, in the present time, nothing is wrong. I got this because I have my power back to me. You can gently open your eyes now. You felt better? Yes. Thank you so much. And it's so simple. Just to align, I mean, I feel that my energy is completely aligned. You get those goosebumps when you say that I call my power and what back you to me. spoke about being present, it's like a beautiful exercise to just bring everything together and be present in the moment. Thank you so much, Amarpreet. I'm so happy that I met you. I called you by your name. Sure, definitely. And I hope you enjoyed this conversation and you took a lot away from this, because I surely did. And I think time kahan fly kar gaya, mujhe pata nahi chala. I was so engrossed in what Oshin had to say. I'm going to put your details in the description. Yes, sure, yes. ताकि आप और भी बहुत से लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज़ शेयर भी कीजिए. हो सकता है किसी को इस कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है, हो सकता है किसी को पता नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या स्टक है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में यू कैन रीच आउट टू हर एंड टेक हेल्प फ्रॉम हर, टेक हर गाइडेंस. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू बीइंग वुमन विद छवि. You're watching Candid Confessions with Chavi. This is both of us signing out. Love and peace from
Asti.